Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hello Karanveer, hello Dipatma. Welcome to E-Times TV. How are you guys? We are amazing. Yeah. Baki Karanveer will. I'm okay. You're tired. Right? Never tired. I love what I do, and we love what we do. So we are good. Yeah. So I have a rapid fire segment which is basically about you two, क्योंकि आप दोनों co-stars हैं और आपकी इतनी गजब की chemistry है on screen. तो मुझे जानना है कि करणवीर आपका पहला impression क्या था जब आपने देबात्मा को देखा था? When you met her for the mock shoot or during the audition, what was the first reaction? You know, I remember this instance where I mean, obviously पहली बार तो हम एक mock shoot में ही मिले थे. So I knew that, you know, okay, she's a good actor, you know. So वो I was never of any doubt, but एक होता ना कि okay, she's good, okay, you know, she did the scene well, and अपने घर निकल जाओ, अपने काम में लग जाओ. Reading में पहली बार जब मिले थे, I think एक और हमारे couple of mock shoots we did, you know, वो तो हुआ ही था. So trying to understand कि कितना क्या करते हैं and all that, and she's very particular, मतलब बहुत अपनी lines को लेके. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. No, मतलब she's very dedicated. Dedication बहुत ज़्यादा है. Initially नहीं particular ज़रा भी नहीं है, मतलब मैं change कर दूँ. ये particular ज़रा भी नहीं है. नहीं, but by the way, देबात्मा in the previous interview also जब मैं उनके साथ अकेले बात कर रही थी, he was all praise for you. He was like कि मैंने हमारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैं हैट्स ऑफ देना चाहूंगा, और खासकर मेरी जो ऑन स्क्रीन एक्ट्रेस है, एंड शी इज फैबुलस. मतलब वो इतनी डेडिकेटेड है कि वो मतलब इन्होंने कहा था, एंड आई रिमेम्बर दैट. Thank you. नहीं, but she is dedicated, and that's why she's gonna achieve great heights, and I'm sure all the best. But at the same time, I think मुझे रीडिंग का एक इंसिडेंट याद आ रहा है. या प्लीज. तो वहां पे सब लोग मास्क के साथ आते हैं, यू नो, तो इनके मास्क पे लिखा हुआ था हसल. चेहरा नहीं लिखा था, पूरा मास्क ही भरा हुआ था. इट्स लाइक हसल. I'm like, oh dude, ऐसे हसल, हसल ऐसे. बोले serious what? No, my name is Debatma. ऐसे नहीं, you know, I like that attitude. वो attitude की बात होती है ना, तो she's a hustler. तो वो कहीं ना कहीं दुनिया को, you know, दिखाना चाह रही थी मैं कितनी हसल करती हूँ, कितना हसल करती हूँ. But reading पे she was like very much into knowing everybody, you know. उसने पूरी तहकीकात की हुई थी सबकी कि कैसा एक्टर है, ये कौन है. Obviously curiosity होती है ना, very curious. मेरी सारी मेरा पूरा ना विकिपीडिया और IMDb देख के, अच्छा इसके साथ कर रहे हैं, अच्छा इसने ये किया, वो किया, वो ये किया है. Obvious सी बात है, मैं हर किसी के बारे में करती हूँ पूरा. और मुझे क्रिएटिव ने बताया, पता है वो तहकीकात बहुत कर रही है, तुझसे बच के रहना. अरे बोला अच्छा यार ठीक है, हर किसी के बारे में किया था ना. ये सब किया, but only that shows the research बहुत करती है. Yeah, I so imagine like, you know, studying, you know, even set पे भी जब मैं काम करने आती हूँ initially, मैं ना एकदम चुप रहती हूँ. अभी तो चुप, because I'm confident, because I know everyone and their personality and stuff. शुरुआत में I just observe everyone. This is my nature. मैं एकदम चुप रहती हूँ, I just observe, and then I'll start talking and then know that person more, and then I'll be comfortable in front of them doing scenes and stuff, you know. So इसीलिए I study a lot, not only regarding knowing someone or something, but also whatsoever work I do. चाहे वो अनुकी के बारे में भी हो, so I'll keep thinking कि okay, this is the girl and this is, अगर वैसे होगी तो, you know, ऐसे भी nature हो. अच्छा अनुकी की गर्ल. अच्छा देबात्मा, you tell me what was your first, I think when you saw him or met him, what was your first impression? What you thought about him? First time तो I एकदम पहली बार बात करें तो I just saw him balcony में ना. I actually was in a rush and then I came back and I was like कि shocked हो गई थी, because you know अचानक से I just came out and then I was running and then he went down. I was like कि कहीं तो देखा है, obviously बात है, and then मेरा curiosity mind चालू. But you know, when I went for my look test नीचे, जब एक साथ look test हुआ,
he was trying to make me feel comfortable like everyone because सबको समझ में आ रहा था कि नहीं, and I was so I was like चुपचाप से ऐसे गई थी, and then he started talking to me very nicely, so I got good vibes from this person, like from him. रही बात इनिशियल डेज की, फिर सेट पे आने के बाद तो आई थॉट कि ही इज वेरी रिजर्व्ड. शुरुआत में ही इज रिजर्व्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी रिजर्व्ड. तो एक होता है ना कि हाय, you just smile, and then he might be thinking something or the other. He told us also later कि he was thinking about something else, so he'll smile less. And I was like, oh god. So I just prayed कि एक friendship हो जाए, या something like that. So you get that comfort zone when you work. या फिर dialogues बोलने में भी मुझे डर लगता था. So अभी the things very different, and at least we can revert very nicely and touch wood. Seriously, because इनके कुछ शॉट्स देखे, इवन आई अप्रिशिएटेड, मैं डायरेक्टली आई सामने ही आके आई टोल्ड यू आफ्टर वाचिंग अ फ्यू एपिसोड्स एंड सीन्स एंड स्टफ, व्हेन माय मॉम स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अबाउट हिज वर्क ना. तो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप हमारा शो देखें, फिर ऑडियंस के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो हमारा शो देखें. अचानक से थैंक यू खुद के लिए मेहनत like कर रहा यार, हूँ ताकि मैं खुद को शो में ढंग का देखूं, और बाकी सब मैं इस कब के लिए भी मेहनत करता हूँ. Appreciate it. No, but please, thank you. इसने इतना वो बोल दिया कि but initial days पे ना, like he used to be एकदम चुपचाप सा, तो I tried to study him. वो मेरी नेचर है actually. वो actually it's a thing which is a very personal thing. It's like I don't like opening my cards and being very. I'm not a very people's person. I'm only a people's person when I'm like, with a select set of group of people who I'm comfortable with. Yeah. But I'm not. I know it's a little contradictory to the profession that you're in. But it's an individual choice. Like you seldom see me in events and gallivanting and all of that, because I'm a very private kind of a guy. I have my own life. I like to keep it that way. But at the same time, when you're working with people and you're such great artists, where you get to learn so many things from, and if you get to I actually learned a lot from him, to be very frank. I'm just saying, not because Karifiri or something, but on a genuine note, on a serious note, I got to learn a lot of him. So Karanveer, you tell me one quality as an actor that you absolutely respect about Debatma as an actor. A quality. I think her endurance for scenes, for the hectic schedules. I think her endurance and her persistence. I respect those things a lot. Because I think it takes a lot. If it was any other girl, doing in this part, she would have had a major breakdown. Because we know what goes behind. Yeah. How hectic it gets. No, people don't have an inkling of how exhausted you can get, or how just overwhelmed you can get, because you're constantly trying to deliver. So hats off to her endurance for sure. She can give anybody run for her money when it comes to endurance. Because she's worked longer hours than me, I think, so on this show. I think she's done more longer hours. I've done longer hours as well, and consistently, क्योंकि अब literally मुझे लगता है कि 2-3 महीने से हम continuously shoot करते हैं. break ना कोई चीज ही नहीं है. So hats off, to her. And अगर करणवीर की बात करें तो आप बताइए देबात्मा, एक क्वालिटी एज एन एक्टर जो आप बहुत अप्रिशिएट करती हैं. As an actor, so कितना hectic schedule होता है हम सबका. Most of the people might get hyper very soon. At least मुझे मेरा ऐसा होता है कि मैं ना एकदम मुंह पे बोल देना, I'm very blunt. So I'll be like, no. इनको मैं देखती हूँ. What I can learn from him is, I even told him also, he's calm, quiet. Okay. He'll solve it that way. मतलब people will be behind him कि yeah. Okay.
Okay, calm. It's okay. So I have not told this to him. Ki, ऐसे this is a fantastic thing I can say. एज अ को-स्टार, अगर करणवीर मैं आपको पूछूं बेस्ट क्वालिटी अबाउट देबात्मा एज अ को-स्टार, शक्ल कैसे बने? सोचना पड़ेगा यार, वैसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, कुछ खाने वाने में पड़ेगी अभी क्या क्वालिटी दिख तो नहीं रही है कुछ, बट पोहा क्वालिटी का तो को-स्टार आई डोंट थिंक शी हैज एनीथिंग फैंटास्टिक, रेगुलर क्वालिटी भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, क्या सोचना पड़ता है एक सेकंड। इनकी क्वालिटी अच्छी है जो इनको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी वो काम में आने वाली है, ये रेडी बहुत फटाफट हो जाती है कभी भी मेरे से पहले हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एक अच्छी क्वालिटी है। तो जितने भी प्रोड्यूसर देख रहे हैं ये इंटरव्यू, जल्दी रेडी होती है, सेट पे टाइम पे आती हैं और एक्स्ट्रा आवर्स करती हैं, मतलब तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा आवर्स नहीं करना मेरे को। एक तो वो है, otherwise I think yeah, I think she's very you know excited about what she's doing, you know, वो passion जो पहले दिन पे था अभी भी है तो अच्छा लगता है, you know, बाकी सारी चीजें जो आती है क्या बोलूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बताओ एक क्वालिटी। नहीं आप से नहीं, one quality as a co-star, like होता है ना कि he is very supportive as a co-star. He's very supportive. Like चाहे कुछ भी हो, dialogues and everything, and like he'll be helping me out. Scenes में rehearsals भी करते हैं and stuff. And he listens to me also. And छोटी छोटी कुछ भी चीजें हो ना, he takes care of that. So I even told him he's very caring, you know, to all of his co-stars, all of our co-actors and stuff. So I really appreciate this thing about him a lot. अगर बात करें, देबात्मा ने काफी सारे सीन्स अब तक किए होंगे, लेकिन अगर आपको एक उनका बेस्ट सीन जो आपको बहुत अच्छा लगा हो अब तक, वो कौन सा होगा करणवीर? मुझे दो सीन्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगे थे। आई थिंक शी किल्ड इट एंड इन बोथ द सीन्स। आई मीन देयर आर मेनी, जैसे अगर मैं स्टार्ट ऑफ द जर्नी से शुरुआत से अगर देखूं तो आई वाज नोटिसिंग द सीन्स जितने भी डबिंग में आते थे, जब भी मैं देख पाता था, तो आई थिंक शी हैड दिस ब्रेकडाउन जब बाप उसे लॉक कर देता है रूम में, तो यू आर जस्ट विद दैट रूम एंड दैट प्लेस, यू नो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यू कुड ओवरडू इट, यू कुड अंडरडू इट, बट डू इट राइट and get that right kind of connect. I think that was wonderful. जो सिंदूर लगाया था मांग भरी थी जब मैंने, which was also the highlight of the show. वहाँ पे she was so like उसको मतलब हम दोनों को मतलब end moment पे वो स्क्रिप्ट मिली थी and it was a huge bunch, मतलब आधा एपिसोड था उसको, आधा नहीं 2 एपिसोड से 1.5 एपिसोड जो भी था, मतलब तो she like took up that challenge and did it, and what a fabulous performance, yeah. Like it, because that was such a give and take kind of a thing. Not only me, see this give and take thing, this is what I'm talking about. Even he did his best. So लेकिन अपने आप से emotions अंदर से आने जाते, you can just stop your tears and everything, just feel Anokhi. And what works in that scene, not many people notice, is like it's the first time that Shaurya is more Anokhi and Anokhi is more Shaurya, you know, in that scene. तो वो एक element of burst of surprise थी, तो बहुत अच्छा था. And I also liked that whole कि जब वो बोलती है कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी, और she has a confrontation with Ved Sabharwal, and I was just complimenting her because unfortunately he couldn't be there on set with us, so he was shooting from Mumbai, and so when he was shooting that scene, to both of them, not only her, even he killed that scene where he has this thing कि boss मैं तेरे को इस कॉलेज से निकाल के रहूंगा, and she's like no boss, give me a valid reason, give me validation for this, you know, give me a justification for this. तो वो भी सीन एक को एक्टर को ना देखे हुए एक कैमरा ऑफ कैमरा देख के बात करना या ऐसे करना, तो एंड टू रियली डू दैट सीन, वो उभर के आए, तो बहुत बहुत अच्छा इन्होंने ओवरऑल काम किया।
मुझे लगता है these are the highlights I feel, which sort of got my attention. So you have to tell me one scene जो करणवीर का आपको बहुत अच्छा लगा, एक दो जो भी. You know, I can't just select a single scene. I Every mean, Dilwale. मजाक कर रहा है. नहीं, but you know, you can't just. एक दिन तो खाना खाते खाते I was watching and इनका reaction देखा I was like, and the next day I came, I was like कि मुझे बोलना है. That was too good. मतलब छोटे-छोटे reaction ये सब good actor. I mean, I have seen, I appreciate about him. But you know, the intensity in every scene, you just I don't want to take out just one scene. I don't want to. I just can't. Sorry. Okay. Yeah. That's a big compliment. Yeah, actually. So करणवीर, मुझे एक ऐसी आदत बताइए दिव्यात्मा की जो आपको बहुत annoy करती है. ये ना लिस्ट है. ये ना सीन के बीच में हंस देती है. अगर मैं Annoy करती है वो. मतलब देख क्या है ना, annoy तो देखो सीन के बीच में हंसाता तो ये है ना, ये कुछ भी करता रहेगा तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे कुछ कॉमेडी का कुछ ऐसे पंच लाइन देना है, कुछ देना है, और बीच में एकदम सीरियस. आज कैसे सीन कर रहे थे, लाइक अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया भैया को? हाँ तो ये बोले तो फील नहीं कर रहा. अब ऐसे छोड़ यार, मैं ऐसे करूंगा तो फील नहीं कर रहा. Are you doing externally? Do it internally. I was like, अरे this was annoying me by the way. है ना? This was annoying me. I was like, because I know him as a good actor. I have seen you do good scenes. Why are you taking? Sometimes he actually takes it very casually. He's like, छोड़ना है. I'm like, no, just feel it internally. आज ही हुआ ये. वाह, मैंने पहले बोल दिया ना वास्क. हाँ, now you ये बस हंस देती है यार, मतलब और क्या है इसका? अरे जानबूझ के नहीं हंसती. He and Harsh sir. मैंने हंसती, सब लोग हंसते, वो अलग बात है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि शुरू सब लोग करते हैं हाँ करके, और मैं sorry this is what I do. हाँ तो वो है इसका मतलब that's a good thing in a way, because सीन में इतना होती है, इन्वॉल्व होती है, तो हम लोग अगर पंच लाइन मार रहे होते हैं या ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, it's fun. जैसे अभी she was laughing non-stop on your तो eyes. क्या चलता है? अरे were you not laughing too? आप भी हंस रहे थे ना? बिल्कुल. क्यों हंस रहे थे? Because of him. Yeah. You know? बात annoy मैं करती हूँ. अच्छा, एक तकिया कलाम या एक कोई वर्ड या कोई हैबिट जो आप हमेशा नोटिस करते हैं, जो दिव्यात्मा बहुत ज्यादा करती है, कोई भी चीज? तो एक तो ये चुटकियां बहुत मारती है, एक्साइटमेंट में ना बहुत चुटकियां मारती है. अरे बॉस ब्रो ये ऐसे करके ना, मतलब चुटकियां मारने लग जाती है. एक तो वो है. फिर लेजिट बोलती है, इसका एक है वो तकिया कलाम. अरे भाई साहब लेजिट मैं बोल रही हूँ, मतलब लेजिट था. तो एक वो है. फिर और क्या है ना तो इंसान के अंदर खुल जाती है ना. तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी चीजें हैं इसकी. इनका ये है कि इनको एक तो रिटच करने में बड़ा टाइम जाता है. तो अक्सर कभी कभार तकिया कलाम बोल रहा हूँ क्या? लिसन ना, मैं कंटिन्यू करूंगी अभी क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया सर. So जब he'll keep doing his hair and something, continuously same चीज. सब लोग ना देखते रहते हैं, कुछ टाइम बाद खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ, still doing it. मैं सामने जाके खड़ी होती, ignored. मुझे वैसे इग्नोर करते, मतलब देखा ही नहीं, still doing his hair. बाद में इनका, for example, director sir, he might be sitting over there and all of a sudden he's done with his hair and makeup. फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं. Standing by sir. Standing by तो इधर आके होता है. Come and stand at your place and then just order sir. Standing by sir. He'll keep doing. Standing by sir.
this is his habit. He keeps doing this. And also, इनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करने आए या फिर कोई भी कुछ भी बोलने जाए, ये जैसे कि मैंने कहा था कि ये कभी ना लाउड नहीं होते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं काम वे में. तो अभी how he starts is, so see the thing is, you know, this is his particular, you know, sentence. See, the thing is, you know, and then he'll go on. See, the thing is that she's getting bored. See, तो कुछ और बोल दे. you're enjoying, no? No, I'm enjoying. हाँ, तो सिर्फ तुम्हें बोर हो रहे हो यहाँ पे. मेरे साथ क्या करा? ये तो लेजिट बात Legit, है ना? वो बहुत सही था. है ना, ऐसे ना कार्टून की तरह नहीं करते हो, है ना? है ना? आगे बढ़े. अच्छा, आप दोनों में से सबसे ज्यादा मिरर में अपने आप को कौन निहारता रहता है? सीन्स के बीच में भी, शॉट्स के बीच? I swear, मतलब जितना मैं मिरर नहीं देखती हूँ, मतलब इनका अभी जस्ट हुआ है रिटच एंड एवरीथिंग, अचानक से पीछे ना मिरर है, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हियर, अचानक से हट के ना नॉट किडिंग, इस सीरियल की हीरोइन मैं. एक मिनट, फिर कभी कभार कहीं पे भी मिरर दिख जाता है, वी आर जस्ट सिटिंग एंड मिरर दिख गया, हिल बिले. और बात करते करते भी होता होगा, बात करते करते मिरर दिख गया तो वही तो मैं बोल रही हूँ, वी आर सिटिंग एंड बात करते करते मिरर दिख गया. And then we'll keep staring. क्या है ये? ऐसा तो नहीं देता है. So wow, sexy, naughty boy. ऐसा नहीं बोलता. Keep staring. But he actually does. My goodness. शक्ल कैसी बनाई है दिमाग ने. माय गुडनेस. ऐसे कोई keep staring. ऐसे देखता हूँ मैं. Oh my god. Too good. This is also his habit, huh? This is also his habit. Oh my god. Actually, he'll try to copy. Actually, he'll try to copy other person. Like, nice. So this is it. You don't do it. Don't lie. Please अपना इंटरव्यू खत्म कीजिए. बहुत सारे फोन बाहर आ रहे हैं. अच्छा, आप दोनों में से अब सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? डांट इन द सेंस नॉट दैट वेरी हार्श. कोई नहीं. हम दोनों में से तो किसी को नहीं पड़ती है, बाकी सब लोग शायद पड़ती हो. ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही हो कि हाँ, एक चीज का हम लोग मजाक मस्ती बहुत करते हैं, तो उसमें ना हमेशा हमारे एडीज डायरेक्टर कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं. और जब हम लोग सब ग्रुप में साथ में होते हैं तो भाई साहब, मतलब हम दोनों मिलके तब से ऐसे हंस रहे, जस्ट इमेजिन द एंटायर पैक ऑफ फैमिलीज टुगेदर यार. मतलब जब सारे सबरवाल एंड भल्ला साथ में होते हैं, वो इट्स एन एक्सपीरियंस टू बी हैड ऑन सेट, लाफ राइट फॉर हूएवर. मतलब पागलपन होता है अलग किस्म का. हमें कंट्रोल करने में और सीन में घुसने में इनको स्पेशल टाइम लग जाता है. पूरे यूनिट को इकट्ठा करके हमें सेपरेट करते हैं वो लोग. अरे आ जाओ. तो ऐसा होता है. दैट्स उस किस्म की डांट को सबको पड़ती. आप दोनों में से सबसे ज्यादा फोन पे कौन होता है? एक्चुअली दोनों में भी, because he'll do his work thing and मैं तभी फोन अपने साथ रखती हूँ when I have to click pictures. Yeah. That's how it works. So obviously it's For my also social. Yeah. तो फोन पे तो आजकल आई थिंक आपके साथ भी अभी फोन पे, तो फोन मुझे लगता है कि कभी जाता ही नहीं है, छूटता ही नहीं. हाँ. ओके, लास्टली बिफोर रैपिंग अप, आप दोनों में से दिलदार कौन है ज्यादा, जो खुश हुआ तो सेट पे कुछ मंगा दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ऐसे कौन करता है? तो दोनों ही करते हैं. दोनों ही करते हैं. एक्चुअली सभी करते हैं. हाँ, एक्चुअली ना सभी हैं दिलदार. Yeah, we are really blessed to have a Touch great wood. unit, Touch and great actors. touch wood. साथ में खाना भी शेयर करते हैं, Yeah. चॉकलेट्स भी शेयर करते हैं, मजाक मस्ती भी, Yeah. गम भी शेयर करते हैं, और खुशियां तो ऑब्वियसली शेयर करते हैं. So I think we are really blessed that way. Yeah.
थैंक यू सो मच गाइज, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। आप लोग काम करें, उसमें बहुत सक्सेस मिले आप लोगों को और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू Thank you, Abhi. थैंक यू थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय ठीक है।